ఇక బులెటిన్ లో డీటెయిల్స్ చూస్తే బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పూరి జగన్నాథ రథ చక్రాలు మరి కాసేపట్లో కదలనున్నాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన జగన్నాథ రథయాత్ర కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో పూరి పురవీధులు జనసంద్రంగా మారాయి. లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులు రథయాత్ర క్షణం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. సింహద్వారం వద్ద స్వామివారి కోసం రథాలు వేచి ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది 2 రోజుల పాటు భక్తులకు రథాలు లాగే భాగ్యం కలగనుంది. 53 ఏళ్ల తరువాత ఈ అరుదైన సంఘటన రావడం విశేషం. అంతకు ముందు 1909 తర్వాత 1971లో అరుదైన శ్రీ గుండిచా యాత్ర జరిగింది. దీంతో ఈ యాత్ర కోసం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. జగన్నాథ రథయాత్రలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కూడా పాల్గొననున్నారు. But still then, Lord Jagannatha's temple is an institution itself. Even though he wanted to see he wanted to have the darshan, wanted to get inside the temple, but he did not do that. And for him specially, in the 15th century, the image of Lord Jagannatha was cast on the right side of the inner canopy of the Lion's Gate. And that is the place where the non-Hindus, they come and pay their obeisance, because Lord Jagannatha has devotees all across all religions. There are many. Even there was a poet called Salabega, the son of a military lieutenant, Lalbeg. He was not getting inside the temple, and he never demanded also to get inside the temple. Rather, he was sitting there and looking at the face of Lord Patitapavana, and he was composing the lines. They are regarded even today the best devotional lines in Oriya language. And this is Lord Jagannatha stepping out in all regalia, and in front of him the royal procession comes, and there is a person who is moving the banati. It's a thing tethered with fixed with balls, and it is called the Pindula Banati, because there are different balls, and he is moving in such a way that even no arrow can also hit. And it was a part of the warfare, and it began much before the నేత్రోత్సవం, నవయుగ దర్శనం, శ్రీ గుండిచా యాత్ర నిర్వహించనున్నారు. 2 రోజుల పాటు స్వామివారి రథోత్సవాన్ని భక్తులు చూడనున్నారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు 3 బృందాలు పాఠనం ప్రారంభించనుండగా ఆ తర్వాత గణపతి రాజు పూజ విధానం పూర్తవుతుంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి జగన్నాథుడి రథం బయలుదేరుతోంది. It also looks beautiful, and particularly it looks gorgeous in the night, and particularly when the Lord should be returning to the temple in the middle of the night during the time of Niladri Bije, after completing the journey. That time in the night, today there is electricity, but when electricity was not there, these Pindula Banati, they were, the Agni Banati was being played there, and the light was getting scattered, and they were looking dazzling on the tayaj of the lords. So this is how the things were there, and Lord is coming out of the main canopy with all regalia. The dance is going on. The gong beaters are there, and dance. We see there are dancers, the male dancers and the female dancers. And this is a dance that is a fusion of Mahari dance, Gotipo dance. Gotipo is a dance that got developed during the time of Prataparudra Dev, the grandson of Lord Emperor Kapilendra Dev. And he was a great devotee. His son, his wives, and his children, they were all the devotees. And he had married the daughter of Krishna Devaraya of Vijayanagara Empire. So there was a strong bond here. And the cult of Jagannatha, in those days it began as a cult, and it got into the astounding popularity in the latter years. It is no longer a cult, it is now a consciousness that we come across. And Prataparudra Dev, at that time, he patronized the dance by the small boys, and that is called the Gotipo dance. And those small boys, those who were దీంతో భక్తుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని భద్రతా వ్యవస్థను కట్టుదిట్టం చేశారు. వర్షం పడే అవకాశం ఉండటంతో వీఐపీల హాజరు కూడా సవాల్గా మారింది. సేవకులు, నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ ఠాకూర్ 3 రథాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లాగాలని, భక్తుల క్రమశిక్షణతో కూడిన దర్శనానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు.
రాత్రి 11 గంటలకు శ్రీ విగ్రహ ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతోంది. Lord and the wooden tribe, they're all made of wood. And how this happens, we shall be relating them during the course of our commentary. Now it's over to commentary in Hindi. చెక్కతో తయారు చేయబడిన 3 రథాలను అలంకరించారు. జగన్నాథుడి రథానికి 16 భారీ చక్రాలు ఉంటాయి. దీని ఎత్తు 44 అడుగులు. బలభద్రుడి రథానికి 14 చక్రాలు 43 అడుగుల ఎత్తు ఉండగా, సుభద్రదేవి రథానికి 12 చక్రాలు 42 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. ఈ రథాన్ని 50 మీటర్ల పొడవైన తాళ్లతో లాగుతారు. రథాన్ని లాగటం వల్ల తమకు మంచి జరుగుతోందని, తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వసిస్తారు. పూర్తి రథయాత్రలో ముందుగా బలరాముడి రథం లాగబడుతుంది. తర్వాత సుభద్రదేవి జగన్నాథుని రథం లాగుతారు. जगन्नाथ जी की पहंडी हो रही है और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरह उनकी एक छवि को, उनके उन 2 निष्पलक नयनों को कहीं से एक बार हम अपने स्मृतियों के लिए जमा करके रख लें, बना कर रख लें। सारे लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मोबाइल में एक बार उनका एक चित्र हमारे समक्ष आ जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में, गुप्त रूप से नीलकंदर में पूजे जा रहे थे। ये बात तो महाराज इंद्रद्युम्न को पता ही थी, लेकिन वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, ये न पता था। उन्होंने अपने विश्वस्त दरबार के जो पंडित हैं विद्यापति, उन्हें भेजा। विद्यापति जब नील माधव को खोजते हुए, उनको देखते हुए भक्ति भाव में बहे जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक शाबरों के कबीले में पता चला कि जो कबीले के जो मुखिया हैं विश्वावसु, वे नील माधव की गुप्त रीति से पूजन कर रहे हैं। पर वहां तक जाना असंभव था, क्योंकि वो पूजा इतनी रहस्यात्मक और गुप्त रीति से होती थी कि वहां तक वे किसी को भी ले जाना नहीं चाहते थे। विद्यापति ने विश्वावसु की कन्या ललिता से विवाह किया और उसके बाद वहां जाने की, नील माधव को देखने की, अपने भक्ति को समर्पित करने की वे जिद करने लगते हैं, अनुरोध करने लगते हैं। अब टाला नहीं गया, लेकिन ये बात कही गई कि आपके आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैं वहां पर लेकर जाऊंगा। पति के प्रेम के वश में आकर ललिता ने एक छोटी सी सरसों की पोटली अपने पति विद्यापति के कमर में बांध दी। सरसों के दाने पूरे रास्ते नीचे झड़ते रहे और कालांतर में रास्ता बन गया, दिशा निर्देश मिल गया। और उसके बाद क्या था, विद्यापति जाते और महाप्रभु के दर्शन कराते। ये बात जब महाराज इंद्रद्युम्न को पता चली तो वो अपने समस्त दल बल के साथ आए, लेकिन जैसे ही वो वहां पधारे तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी आंधी आई और नील माधव कहीं अंतर्धान हो गए। विद्यापति को अफसोस तो बड़ा, बहुत दुख हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि कर्तापन की भावना वे न लाएं अपने मन में और मंदिर निर्माण एवं चतुर्था मूर्ति के रूप में उन्हें स्थापित करने का सौभाग्य जो है अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि कालांतर में श्वेत द्वीप से महाविष्णु का एक रोम स्खलित हुआ एवं उसने महादारु का रूप धारण कर लिया। ये वही महादारु है चतुशाखा विशिष्ट जो महोदधि में तैरता हुआ
किनारे पर लगा, ठीक वहीं जहां पर इंद्रद्युम्न सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सबसे पहले तो कहा जाता है कि उससे एक ही दारू विग्रह परब्रह्म की रचना हुई, फिर प्रकृति आई, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए और कालांतर में चतुर्था मूर्ति का निर्माण हुआ। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में दारू की महानता बताई गई है, बखानी गई है। दारू ही क्यों? दारू जो मनुष्य के दुखों का विदारण करे और उन्हें आनंद की प्राप्ति दे। और महाप्रभु दारू विग्रह, दारू ब्रह्म कहे जाने लगे। अब जब महाप्रभु पहंडी करते हुए आ रहे हैं तो देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है कि वो थक तो नहीं गए। जरूर इस उमस की वजह से पसीना निकल गया होगा, घबराहट तो उन्हें भी हो रही होगी। क्यों न हो, कितने ही भक्तों ने घेर के जो रखा है और इसीलिए जो है लगातार आलट चामर की सेवा हो रही है कि थोड़ी सी राहत उन्हें मिल जाए। और यहाँ पर भक्तों का समागम बढ़ता ही चला जा रहा है, महाप्रभु को देखने और उनके दर्शन पाने योग्य। ये गोष्ठी सेवा जो है दैतापतियों की लिए एक विशेष अनुग्रह है। दैतापति वो जो कि ब्राह्मण सेवायत नहीं है, बल्कि ये विद्यापति एवं ललिता की संतति हैं, जो शाबर संस्कृति से संबंधित हैं। दैता अलग और पति अलग। दैता जो है शाबर वंशज माने जाते हैं और जो पति हैं वो ब्राह्मण सेवायत माने जाते हैं। और यहाँ पर जो दैता सेवक हैं उनके लिए ये विशेष अनुग्रह है, या कह लीजिए उनके लिए ये आशीर्वाद है कि वे ये गोष्ठी सेवा महाप्रभु की करते हैं। और महाप्रभु उनके हाथों यूं बंधे चले आते हैं जैसे एक कठपुतली की तरह। कहा तो जाता है कि हम सब उनके हाथों कठपुतली हैं और वे हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, या उनके इंगित पर हम इस सृष्टि में आते हैं और जैसे ही समाप्त हो जाती है हमारी लीला हम चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति के पारवश्य में महाप्रभु स्वयं भक्तों के हाथ में डोर से बंधे हुए हैं। जैसे भक्त चलाता है वैसे चलते हैं और कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई और रस है ही नहीं। जहाँ पे भक्ति हो वहाँ पर महाप्रभु भक्तों के साथ जहाँ वे ले जाएं चलते हैं। जिस तरह से वो खींचे वो उस दिशा में चले जाते हैं। देखिए टाहिया बंधे हुए महाप्रभु कितने 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 सुंदर लग रहे हैं। इंद्रद्युम्न को भगवत कृपा प्राप्त हुई और ईश्वर ने शून्यवाणी के माध्यम से उन्हें आश्वासन भी दिया कि जब तक श्वेत वराह कल्प व्याप्त रहेगा, युगों युगों तक मंदिर के अनेक बार खंडित होने के बावजूद वे यहाँ पर इस श्री क्षेत्र में, शंख क्षेत्र में निवास करेंगे एवं भक्तों का इस संसार का उद्धार करते रहेंगे। सहस्र शीर्षा देवा सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र शीर्ष सहस्रपाद सहस्राक्ष होने के बावजूद वे संपूर्ण रूप से भक्तों के वश में आ गए हैं। अब देखिए ये तीनों रथ यहाँ पर, जिसमें बीच में माँ सुभद्रा का रथ, जहाँ पर माँ सुभद्रा विराजमान हो चुकी हैं, ताड़ध्वज रथ में बलदाऊ विराजमान हो चुके हैं। अब प्रतीक्षा है नंदीघोष रथ की, जहाँ पर महाप्रभु अब कुछ ही देर में विराजमान होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सेवक हैं जो हाथ में 2 बेतों को लिए हुए हैं। यहाँ भक्तों को हल्की हल्की बेतों की मार पड़ती है जो भी भगवान के दर्शन करने आते हैं। दरअसल उस मार के माध्यम से समस्त पापों का प्रक्षालन माना जाता है और उसे शिरोधार्य किया जाता है। और यहाँ पर
जितने भी भक्त हैं उन सभी को अपने अपने पापों के प्रक्षालन का एक अवसर भी मिल रहा है। महाप्रभु कृपा निधान कृपालु स्वयं रत्न सिंहासन को छोड़कर आए हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने गजराज का उद्धार किया था। गजराज जब अपने समस्त परिवार के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे तो तभी एक बहुत बड़ा मगर आता है और उनको ग्रस लेता है, उनके पैर को अपने जबड़ों के बीच दबोच लेता है। क्या करे, खूब चिल्लाते हैं गजराज, कोई नहीं आता सहायता के लिए, कोई सहायता कैसे करे। एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही क्रूर पशु ने उन्हें ग्रस के रखा था। तभी उस सरोवर के एक कमल को अपनी सूंड में उठाकर उसे ऊर्ध्वमुखी करके वे जोर से महाविष्णु को बुलाते हैं और महाविष्णु किसी की परवाह नहीं करते। जैसे ही वो अपने भक्त का आर्तनाद सुनते हैं, ना उन्होंने शंख पकड़ा, ना चक्र पकड़ा, ना ही गदा और ना ही अपने साथ किसी और अस्त्र शस्त्र को लिया, ना लक्ष्मी को बताया, ना ही गरुड़ पर आरूढ़ हुए, बस दौड़ते चले आए कि अपने भक्त की रक्षा करनी है। भक्त के एक पुकार पर आकुल व्याकुल होकर जिस तरह से महाविष्णु अपने विष्णु पद को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर, लक्ष्मी को छोड़कर, अपने समस्त ऐश्वर्य को छोड़कर चले आते हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, आज उसी प्रकार से रत्न सिंहासन, महालक्ष्मी और वो जो 56 भोग दिन में लगते हैं उन्हें, वो 56 भोग का सुख और राजसी ठाट बाट जहाँ वो सिंहासन पर बैठे रहते हैं और भक्त आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, देवदासियां आती हैं, नृत्य करती हैं, हर एक दिन अलग अलग वेश धारण करते हैं, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, फूलों से सुसज्जित होते हैं, नाना प्रकार के आभूषण पहनते हैं और अपने वो सभी सुखों को, अपने उस राजसी ठाट बाट को सब कुछ छोड़कर वो आज अगर बाहर आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो भक्तों के मध्य आ सके। ये कितना सुंदर अन्योन्याश्रित संबंध है कि जितनी आवश्यकता भक्तों को भगवान की है, उनके कृपा की है, उनके अनुकंपा की है, उतनी ही आवश्यकता ईश्वर को भक्तों की भक्ति की है। और इसीलिए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इसीलिए तो भक्त और भगवान अलग हैं ही कहाँ। जिस प्रकार से कहा जाता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, और जैसे ही वो कुंभ फूट जाता है वो जल